Hello everyone, welcome to the online classes. Today we'll start with RNA structure and its functions. Okay, so first of all, tell me that what do you mean by RNA? RNA क्या होता है? Yes, what is RNA? RNA means, the full form of RNA is ribonucleic acid. It means it is also a nucleic acid which is present in all living cells, and its principal role is to act as a messenger carrying instructions from DNA for controlling the synthesis of protein. Although in some viruses, RNA rather than DNA carry the genetic information also. Okay, so RNA is a protein synthesis, a messenger, but in some viruses or even in some other bacteria also, RNA act as a genetic material. Fine. So like in previous two lectures, we already discussed about the nucleic acid. That what do you mean by nucleic acid? क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? कौन बताएगा? यस, क्या होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड? Yes, nucleic acid is a complex organic substance present in living cells, especially in DNA and RNA, whose molecules consist of many nucleotides linked in a long chain. यही टर्म चाहिए थी मुझे. That in nucleic acid, many nucleotides are connected in a long chain. क्या है न्यूक्लिक एसिड में? कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक लॉन्ग चेन में कनेक्टेड है. सो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोटाइड्स? क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स? कौन बताएगा? अगेन, न्यूक्लियोटाइड्स आर द कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड लिंक्ड टू अ फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, हमने देखा सबसे पहले आरएनए बना है न्यूक्लिक एसिड से. फिर हमने देखा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है. देन हम डिस्कस कर रहे हैं अब, हमें पता चल गया कि न्यूक्लिक एसिड इज अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लिक एसिड क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. नाउ वी स्टार्ट विद न्यूक्लियोटाइड्स. दैट व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स आर अ कंपाउंड विच आर, यस, they are compound consisting of nucleoside linked with a phosphate group. So now what is nucleoside? Nucleosides are also compound consisting of nitrogenous base pair and sugar. So which type of sugar is present in RNA? Ribose sugar. तो काफ़ी सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं RNA के बारे में. Now we'll see. The RNA is a polymer of ribonucleotides linked together by 3' to 5' direction with a phosphodiester linkage. किसके थ्रू होती है ये लिंक? इनके बीच में लिंकेज phosphodiester bonds के थ्रू होती है. And in which direction? In 3' to 5 direction. Now we'll see RNA versus DNA means. RNA is a single-stranded structure, but DNA is double helical structure. RNA contains uracils, DNA contains thymines. You will see the differences here. First, the single strand is RNA, double strand is DNA. RNA is generally used for the which substances? RNA को हम क्यों यूज़ कर रहे थे? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस हम जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन वी यूज DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल. नेक्स्ट, राइबोज इज द मेन शुगर इन RNA. इन DNA द deoxyribose sugar is there. Third point is pyrimidine components differs. Thymine is never found. ठीक है, थायमिन इसमें नहीं होता है. tRNA की बात अलग है, जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा. बट हमारे अंदर का क्या प्रेजेंट होता है? इन DNA ऑलवेज थायमिन इज देयर.
RNA does not follow Chegaff's rule. RNA Chegaff's rule follow नहीं करता है, but DNA जो है वो completely depend करता है Chegaff rule पर. Okay, DNA is completely dependent on Chegaff rule. Next point is RNA can be easily destroyed by alkalis to cyclic diesters of mononucleotides, but DNA resists alkali action due to the absence of OH group at 2' position. जनरली आरएनए में क्या होता है, OH पोजीशन सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट ऐसा डीएनए में नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज RNA is relatively a liable molecule, undergoes easy and spontaneous degradation, but DNA is a stable molecule. The spontaneous degradation is very low, okay, because DNA stores information together without any change. Okay, years to years, कई सालों तक हमेशा information कैरी करके रखता है. The next difference is mainly cytoplasmic but also present in nucleus. Generally RNA क्या होते हैं, cytoplasmic, but sometimes it is also present in nucleus. But DNA कहाँ होता है? DNA always present in nucleus and also found in mitochondria and plastids. Okay? अब बेस पेयर्स की अगर हम बात करें तो वेरी करता है किसमें, 100 to 5000, ठीक है, साइज वेरिएबल होती है. बट इन डीएनए डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म पे, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में कितनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, उसके अकॉर्डिंग डीएनए के नंबर्स में वेरी करेंगे. ये कई मिलियंस में हो सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ RNA, mRNA, tRNA, snRNA. miRNA, hnRNA, rRNA, so many types of RNAs are there according to their specific function performed by them. But DNAs are always one time and perform the function of storage and transfer of genetic information. ठीक है. नेक्स्ट, नो वेरिएबल फिजियोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ RNA आर फाउंड. इसके कोई फिजियोलॉजिकल फॉर्म्स नहीं होते हैं, बट डीएनए के होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज RNA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम DNA, इट कैन नॉट फॉर्म DNA. RNA DNA से बनता है, DNA RNA से नहीं बनता है. ठीक है. एक्सेप्ट इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अपने पढ़ा है ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बायोटेक्नोलॉजी में, वहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स हो जाता है. ठीक है. बट डीएनए कैन फॉर्म डीएनए बाय रेप्लिकेशन. बट डीएनए क्या कर सकता है, डीएनए बना सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, एंड इट ऑल्सो फॉर्म आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो डीएनए भी बना सकता है एंड आरएनए भी बना सकता है. Next point is many copies of RNAs are present per cell, but DNA single copy present होती है, एक सेल में एक ही DNA होगा. ओके. Now next we'll start with types of DNA. Okay. So in all prokaryotic and eukaryotic organisms, three main classes of RNA molecule exist. कौन से 3 मेन टाइप्स होते हैं बेटा? यस, mRNA, tRNA एंड rRNA. बट इनके अलावा भी हमने कई टाइप के RNA सुने हैं, जैसे snRNA हमने देखा है, miRNA, siRNA, hnRNA. तो ये भी हमें एक बेसिक इनका पार्ट पढ़ना है कि ये भी क्या होते हैं. तो टुडे विल स्टार्ट विथ mRNA. आज हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले स्ट्रक्चर ऑफ mRNA. mRNA मीन्स इट इज द मैसेंजर RNA. क्या है ये हमारा मैसेंजर RNA.
अब कैसे फॉर्म होता है अपना mRNA? mRNA फॉर्म होता है किससे? DNA से, ठीक है। DNA से हमारा बनेगा mRNA और mRNA से बनता है हमारा प्रोटीन। DNA से पहले क्या बनता है? mRNA, और mRNA से फिर आगे फर्दर जाके बन जाते हैं हमारे प्रोटीन्स। ओके, सो mRNA comprises only 5% of the RNA in the cell। एक सेल में जितने भी RNA होते हैं उसमें mRNA कितना है? ओनली 5%। Most heterogeneous in size and base sequence। mRNA कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है साइज में और उनके बेस सीक्वेंसेस में। All members of the class function as messengers carrying the information in a gene to the protein synthesizing machinery। क्या हो रहा है यहाँ पर? जितने भी जीन्स प्रेजेंट है वो सब किस में हेल्प करते हैं? हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर कि डीएनए से बनते हैं mRNA। तो यहाँ पर क्या होगा आगे जाके? प्रोटीन सिंथेसिस में वो सारी इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। नाउ द स्ट्रक्चर is they are the 5' terminal end and is capped by 7-methyl guanosine triphosphate। जब आप भी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि जब mRNA बन जाता है तो उसके बाद उसकी कैपिंग एंड टेलिंग की जाती है। क्या की जाती है? कैपिंग एंड टेलिंग। तो कैपिंग में हम किसकी कैपिंग कर रहे हैं? यहाँ पर हम कैपिंग कर रहे हैं 7-methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट की, ठीक है। कहाँ पर? 5' टर्मिनल एंड पर। द कैप इज इन्वॉल्व इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ mRNA बाय ट्रांसलेटिंग मशीनरी। और ये कैप किस में इन्वॉल्व होती है? ताकि ये mRNA रिकॉग्नाइज हो जाए किसके थ्रू? ट्रांसलेटिंग मशीनरी के थ्रू। It stabilizes the mRNA by protecting it from 5' exonuclease। ये क्यों स्टेबलाइज करता है? ताकि 5' जो एक्सोन्यूक्लियस है उसको mRNA से प्रोटेक्ट कर सके। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज the 3' end of most of the mRNA have a polymer of adenylate residues। किसका पॉलीमर होता है उनके पास? जो हमारा 3' एंड है। 5' एंड पे तो हमने कैपिंग कर दी, 3' एंड जो है हमारा उस पर क्या रहते हैं? पॉलीमर्स रहते हैं किसकी? एडिनाइलेट रेसिड्यूज के। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या है? कैपिंग होगी। नेक्स्ट इज टेलिंग। द टेल प्रिवेंट्स द अटैक बाय 3' एक्सोन्यूक्लियस। वहाँ पर कैपिंग किससे प्रिवेंट करी थी? 5' एक्सोन्यूक्लियस से। यहाँ पर टेल प्रिवेंट कर रही है 3' एक्सोन्यूक्लियस। The stones and the interferons do not contain any poly A टेल। जो स्टोन प्रोटीन्स होते हैं एंड इंटरफेरोन्स जो होते हैं उनके ऊपर पॉली ए टेलिंग नहीं होती है, ठीक है। पॉली ए टेल मीन्स जो हमारे एडिनाइलेट है इसकी एक लॉन्ग चेन बन जाएगी कहाँ पर? टेल साइड पर, तो उसको हम बोलते हैं पॉली ए टेलिंग। तो हमारी बोथ जो एंड्स है 5' और 3' they are non-coding sequences which are not translated। okay, next point is the intervener region between the non-coding sequence between 5' and 3' end is called coding region। और इन दोनों नॉन कोडिंग रीजन के बीच में जो रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं कोडिंग रीजन, एंड दिस रीजन एनकोड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन। क्या हुआ? हमारे पास एक mRNA बन गया ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। कहाँ से? DNA टू mRNA। जब हमारा mRNA बनता है तो वो रॉ रहता है। हम उस mRNA के ऊपर क्या करते हैं? कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है। कैपिंग 5' एंड पर होगी, टेलिंग हमारी 3' एंड पर होगी। अब इस 5' एंड और 3' एंड के बीच का जो रीजन है उस रीजन को हम बोलते हैं कोडिंग रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं हम इस रीजन को? कोडिंग रीजन। ओके, एंड यही रीजन है जो एनकोड करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। किसके लिए एनकोड होता है ये? प्रोटीन सिंथेसिस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर mRNA। यहाँ पर कैपिंग हो गई, दिख रहा है आपको कैपिंग 5' एंड पर, एंड पॉली ए टेल दिख रही है आपको कहाँ पर?
स्वीडिश एंड पर ए कंटिन्यूस ए दिख रहा है। तो ये जो बीच का जो येलो रीजन है हमारा AUG से UAG, AUG क्या था अपना इनिशिएशन कोडॉन, UAG क्या है अपना टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है, जेनेटिक कोड में हमने पढ़ा था ये। तो ये हमारा कौन सा रीजन है बेटा, कोडिंग रीजन, और उसके आसपास के जो कैपिंग और टेलिंग रीजन है वो क्या है हमारे नॉन कोडिंग रीजन। तो स्टार्ट हुआ AUG से, उसके अपने सीक्वेंस क्या है CCU GGA CUG AGC GCU और लास्ट में ख़त्म हो गया ये UAG पर। जैसे ही ये यहाँ पर टर्मिनेट हुआ हमारे पास क्या हो गई, एक पॉली ए टेल बन गई इसके पीछे, और ये हमारा क्या है कंप्लीट mRNA है एक यूकैरियोटिक सेल का। ओके, अब ये जो 5' एंड है जिस पे हमारी कैपिंग और टैलिंग हुई है, इसको क्यों करते हैं, ताकि ये जो एंड्स है इसके mRNA के एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से प्रिवेंट हो सके, इसलिए क्या कर देते हैं यहाँ पर कैपिंग और टैलिंग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द mRNA molecules are formed with the help of DNA template during the process of transcription। किसकी हेल्प से बनेंगे ये, DNA टेम्पलेट्स की हेल्प से बनेंगे। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in mRNA is complementary to the sequence of nucleotides on template DNA। किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये, हमेशा mRNA बनेगा हमारे कोडिंग जो को अपना कोडिंग टेम्पलेट होता है DNA का उसके थ्रू। तो अगर सपोज कोडिंग टेम्पलेट में A है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा U, अगर कोडिंग टेम्पलेट में हमारा G है तो इसमें क्या आ जाएगा mRNA में C। मीन्स जो हमारा mRNA है वो जिस टेम्पलेट से DNA की कोड हुआ है वो उसका ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। द सीक्वेंस कैरीड ऑन mRNA इज रीड इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स। किसके फॉर्म में रीड करते हैं हमेशा, कोडोन्स की फॉर्म में। कोडोन्स हमेशा आपको पता है जेनेटिक कोड्स 3 न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। एंड द mRNA इज फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA। HNRNA की प्रोसेसिंग के बाद mRNA अपना बन जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा कि RNA क्या होता है, देन हमने देखा डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA एंड द स्ट्रक्चर ऑफ mRNA। mRNA किसकी हेल्प से फॉर्म होता है, DNA टेम्पलेट। ओके, DNA टेम्पलेट की किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी या सिमिलर होगी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स होंगी। कौन सी प्रोसेस है जिससे mRNA बनेगा, mRNA इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। किसकी हेल्प से बनता है, ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से बनता है। क्या स्टोर करके रखता है mRNA, mRNA स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे HNRNA, tRNA और फर्दर RNA के स्ट्रक्चर्स को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।